preparations for the 200 plus farm unions protesting. Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee Secretary General Sarwan Singh has of course held a meeting with several farmers unions early morning. He also just addressed a press conference. Remember this of course after last night's meeting with union ministers proved to be inconclusive. Joining us at this point to look at this story in greater detail is my colleagues from all across the country. Arzu Seth joins us live from the Ghazipur border in Delhi. Arzu, Sarwan Singh just addressing a press conference there, making it clear that the protest will continue. The talks have been inconclusive is what he said. Although the room for dialogue, the door is not closed yet. Arzu, can you hear me? Okay, I think we've lost that connection with Arzu there. Mahinder Singh is joining us from Karnal. Mahinder, if we talk about Karnal, what are you seeing around you? The farmers' movement clearly, of course, beginning for Delhi? Mahinder Singh, can you hear me? Okay, I think we're having a lot of problems with our reporters today. We will just try and get their connection checked before we attempt to go to them again. But let me also attempt to go to Noida, where Sahil Rukhaya is joining us now. Sahil, where in Noida are you and what are you seeing around you? Has the movement of the farmers from Uttar Pradesh begun? Sahil, can you hear me? All right, as I said, clearly a lot of connection issues there this morning, unfortunately, with our reporters. We will just try and get that checked. Do we have some reactions that we can play out? Okay. We will play out some reactions as well in just a bit. But these, of course, are the big developments we are tracking for you. Let me quickly try and go to Mahinder for more on this story. I think he's at the Chilla border, if I'm not mistaken. Mahinder, Mahi, what are you seeing there? What is the situation at the border where you're standing? I can see a lot of security presence there as well this morning. चिल्ला का बॉर्डर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफी भारी संख्या में जो पुलिस बल है, चाहे पीएसटी की बात करें, ब्लैक कमांडो की बात करें, आला अधिकारी की बात करें, वो मौजूद है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो ब्लैक कमांडो है वो आपको यहाँ नजर आएगी। और तस्वीरें ये बयां कर रही है कि किस तरीके से जो नोएडा पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। क्योंकि एक इनपुट जो सूत्र बता रहे हैं कि इनपुट ये मिला है कि जो किसान है नोएडा से दिल्ली जब कूच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर का रास्ता है उसको अपनाना चाहेंगे। तो जिसको चलते हुए दिखे तमाम जो ब्लैक कमांडो है वो यहाँ मौजूद है। पीएससी की बात करें तो पीएससी यहाँ आपको मौजूद मिलेगी। तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो भारी संख्या में जो किसान यहाँ से निकलेंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए तमाम देखेंगे किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो खासतौर पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर जो पुलिस बल है वो तैनात है। खासकर जो चिल्ला बॉर्डर है देखिए, क्योंकि यहाँ बुलडोजर की भी सहायता ली जा रही है और जो भारी भरकम बैरिकेडिंग है, जो बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो आप देखने को मिल रही है। सुबह से लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से नोएडा के जो तमाम बॉर्डर, चाहे हम कलंदीकुंज की बात करें, डीएनडी की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पर काफी जो जाम है वो लगने की स्थिति हो रही है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली जो पुलिस के जो तैनात बल है वो यहाँ मौजूद है। देखेंगे किस तरीके से जो सड़कों पे आपको जाम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है जो ये बताया गया था कि सुबह 10 बजे के आसपास ये जो तमाम जो किसान है दिल्ली कूच करेंगे, उसको देखते हुए तमाम व्यवस्था है। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जो ये चिल्ला बॉर्डर है तकरीबन यहाँ हर दिन नोएडा से दिल्ली 1 लाख या 1.25 लाख से अधिक गाड़ी जाती है, मगर आज सभी लोगों को 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। खासकर अगर बात करें
महामाया या एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां तक जाम लगा हुआ है। सुबह के वक्त ये जो जाम था थोड़ा बहुत कम था, मगर जैसे ही 10 बज गए और जिस तरीके से किसानों की हलचल बढ़ती देख रहे हैं, जो पुलिस और जो आला अधिकारी, आपको बता दें कि यहाँ ड्रोन की मदद से भी निगरानी बनाए रखे हैं। और जो तमाम ऐसे एरिया हैं जहां किसान आंदोलन अभी कर रहे हैं, खासकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा की बात करें, वहां भी पुलिस की उन पर निगाहें, खुद यहाँ ज्वाइंट सीपी मौजूद, तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद, दिल्ली के डीआईजी यहाँ मौजूद है। यानी कि जो ये बॉर्डर है चिल्ला और नोएडा का जो बॉर्डर है, यहाँ सबसे ज्यादा जो पुलिस को डाउट है कि किसान यहाँ से दिल्ली कूच कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, चाहे गाजीपुर की बात करें या सिरसा की बात करें, हिंसा गंधाल की बात करें, तमाम एरियो में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ तकरीबन 2500, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में 2500 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। 500 से अधिक जो ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मी वो तैनात किए गए। अगर चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो जैसे हमने देखा सिंगू बॉर्डर पे जो नोकीले जो कील है वो लगाए गए हैं, वैसे ही सेम तस्वीरें आपको दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ भी जो कील है वो लगाए गए हैं, जो तारे हैं वो लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह से भी जो किसान है नोएडा से दिल्ली कूच ना कर सके। और लगातार देखे तमाम जो तस्वीर है दिल्ली के तमाम पटल से बार बार निकल के आ रही है कि किस तरीके से जो किसान है बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे। और 10 बजे, यानी कि जब 10 बज जाएंगे उस वक्त 10 बज चुके हैं, और जो किसान अभी देखेंगे किस तरीके से आगे अपने स्टेप बढ़ा रहे हैं। जो किसानों का पूरा धक्का है वो पंजाब हरियाणा से निकलकर दिल्ली की तरफ तो आ ही रहा है, मगर इससे जी महेंद्र बने रहिए आप हमारे संग। मैं दोबारा प्रयास करता हूं आरजू सेठ के पास जाने का। आरजू, अगर इस बार आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो क्या स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर पे? What can you see there at the Gazipur border, Arzu, even as of course the farmers have held a press conference saying that the talks with government have been inconclusive? Well, yes, the farmers have started their from Punjab. They are coming to the national capital and they have started their march, Delhi Chalo Andolan. It's good to see, how the preparation has been made on ground. The heavy police force have been deployed at every corner of the national capital. You can see a number of barricading that have been put place at the लगता है आरजू से हमारा संपर्क जो है वो कट गया है। आई थिंक वी लॉस्ट आरजू's connection there. We will just try and get her back in a second. But Mahinder Singh also joins us now from Karnal. Mahinder, with the talks now proving inconclusive, is it inevitable now that the farmers will attempt to reach Delhi as soon as they can? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार के साथ किसान संगठनों की वार्ता जो है विफल रही है, और अब पंजाब में जिस तरह से किसान संगठनों के नेताओं ने आपस में विचार विमर्श किया था, उसके बाद ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि किसान संगठन जो है दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में प्लानिंग भी किसान संगठनों की तरफ से की गई है। 50 युवा किसानों की टुकड़ियां जो है बनाई गई है, ताकि जो पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है उसको तोड़ा जा सके। यहाँ से अंबाला में जिस तरह का टेंस माहौल चल रहा है, उसकी जो कुछ छवि यहाँ पर करनाल में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी गतिविधियों की बात की जाए, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर भी सक्रियता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जो कंपनियां थी सिक्योरिटीज की, चाहे अर्धसैनिक बलों की हो चाहे पुलिस की हो, वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है आ चुकी है। क्योंकि यदि किसी तरह की हलचल होती है किसानों के बीच और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो उसके बाद दूसरा प्रयास होगा किसान जब तक रोकने का होगा। यही वजह है कि वहां के हालात जैसे पल पल बदलते हैं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी इसी मुताबिक जो है सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर वाटर कैनन की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, वो सब जो फैसिलिटीज यहाँ पर अच्छी की है, जो प्रबंध यहाँ पर रखे वो सक्रिय मोड में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से समय बीत रहा है, उसके साथ साथ किसान किस तरह से अपना अगला कदम उठाएंगे, उसके मुताबिक ही यहाँ पर भी जो पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी है वो तेज हो जाएगी। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.